This is the brackets. And separated the separate elements by commas. Separate elements by commas. B is the set of all vowels in English alphabet. For example, B is the set of all vowels in English alphabet. Then B is equals to A, E, I, O, U. This is about the roster method. B is the set of all vowels in English alphabets. Next. पहली थी रोस्टर मेथड. इसमें हम ब्रैकेट में एक्चुअल एलिमेंट्स लिखते थे एंड दैट एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय द कॉमास. और एक मेथड है, हम एलिमेंट के बजाय उसकी प्रॉपर्टी से उसको स्पेसिफाई करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज सेट बिल्डर फॉर्म. इसमें एक्चुअल एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं. पहले इसमें रोस्टर मेथड में एक्चुअल एलिमेंट्स लिखते हैं, लेकिन इस सेट बिल्डर फॉर्म में, in this builder method, we describe the elements of the set by specifying the property which determines the element of the set. Elements are represented by its property. Actual elements लिखने के बजाय उसकी property के, which determines the element of set uniquely, which determines the set, which determines the element of elements of the set uniquely. Elements are represented by its property which determine the elements of set uniquely. For example, यहाँ पे B था A, E, I, O, U. यह है इंग्लिश अल्फाबेट. इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स. तो हमको ये हो गया रोस्टर फॉर्म, जो पहले हमने देखा एक्चुअल एलिमेंट लिखते. और बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं? B is the set of all X such that X is vowels from English alphabet. इस तरह से उसकी प्रॉपर्टी से डिफाइन करते हैं. अगर एलिमेंट संख्या में बहुत ज्यादा हो तो हम इसका सेकंड मेथड का यूज करते हैं. इफ एलिमेंट्स आर थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, देन वी यूज द सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर मेथड में तो एक्चुअल एलिमेंट्स को ही डिफाइन करना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है. लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में उस एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को हम डिस्क्राइब करते हैं.
For example, P is the set of first 5 multiples of 2. P is the set of first, for example, 10 multiples of 2. 2 के फर्स्ट 10 मल्टीपल लेना है हमें, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? P is the set of all x such that, कैसे रीड करने का देखो, P is the set of all x such that x belongs to n, x नेचुरल नंबर है, and x equals to 2 times n, and n is less than or equal to 10. N belongs to set of natural numbers. N belongs to set of natural numbers. Set of first 10 multiples of 2 को इस तरह से लिखेंगे, set of all x, तो कैसे रीड करेंगे देखो, P is the set of all x, x क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड x क्या है, 2n, एंड n क्या है, लेस देन और इक्वल टू 10 है, और स्मॉल n बिलोंग्स टू आल्सो नेचुरल नंबर. ये सेट बिल्डर में ये रिप्रेजेंटेशन का सीक्वेंस आगे पीछे हुआ तो भी चलता है. This is about the set builder method. Now subset of a set, next definition. आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, रोस्टर मेथड में क्या होता है, एक्चुअल एलिमेंट्स लिखते हैं, और सेट बिल्डर मेथड में उसकी प्रॉपर्टी से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. मीन सेट बिल्डर मेथड इज एडवांटेजेस. Subset. A set A is said to be subset of set B if every element of A is also an element of B. A set A is said to be a subset of set B
if every element of A is also an element of B, is also an element of B, and we write A is subset of B. Okay. Superset. If A is subset of B, then B is called superset of A. Then B is called a superset of A. Right? B is superset of A. Next, proper subset. Subset of proper subset में क्या होता है? A non-empty set A is said to be proper subset of B if and only if all elements of A are in set B, at least one element of B is not in A. Proper subset क्या होता है? देखो, A के एलिमेंट्स है 1 2 3, B के एलिमेंट्स है 1 2 3 4. अभी B क्या है? सुपर सेट भी है, और ये क्या है? प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि B में जो 4 एलिमेंट है वो A में नहीं है. Then it is denoted by A is a proper subset of B. If there exists a single element in A which is not in B, then set A is not a subset of B. For example, suppose A में एलिमेंट्स है 1 2 3 7 और B में एलिमेंट है 1 2 3 4, then A is not a subset of B. अगर A में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है जो B में नहीं है, then we say that A is not a subset of B. अभी इंटरवल्स भी है. नेक्स्ट जो इंटरवल हमने क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल डिस्कस किया है, उसी तरह के कुछ इंटरवल्स हम यहाँ पे भी है. इंटरवल्स, ये जो बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स का जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, ऐसे में कामना करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ. आपके जीवन में, आपके स्टडी में ये 2 साल में लिए 10 साल के लिए इसका बहुत ही आपको एडवांटेज रहेगा. इसी कामना के साथ, इसी शुभेच्छाओं के साथ मैं आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश करता हूँ. टुमारो इंटरवल के साथ हम कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. नाउ स्टे हियर, योर नेक्स्ट लेक्चर विल बी गेट. Please rejoin again. All candidates, please rejoin again.